وعلیکم السلام یاسو. ہلو. وعلیکم السلام یاسو. ارے بولو بھائی، کاहे فون کیا ہے؟ کیف الحال؟ ہاں الحمدللہ، اہل حدیث تا قیامت تک خیریت سے رہیں گے. ما آپ بتاؤ بریلویوں کا کیا حال ہے؟ ماذا اہل سنا ہے الحدیث؟ بہت عذاب آ رہا ہے بریلویوں کے اوپر اللہ کا. ماذا اہل الحدیث یاسو؟ بھائی جو آپ کے حلق میں جو بھائی وہ اٹکا ہوا ہے ڈنڈا، پہلے اس کو نکال لیجئے، اس کے بعد بولیے. آپ کو ایک بات کرنی تھی. تو آرام سے بولو نا میرے بھائی، پیار سے بولو، اس میں کیا دقت ہے؟ ایک نہیں دو بات بولو. خیال سے بات دراصل ہے نا، آپ جو پہلے تھے نا تو پہلے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا بات کرنے کا انداز تھا، بہت اچھی طرح سے. لیکن بعد میں پتہ نہیں آپ کا کیا ہوا، شاید دماغی خرابی، دماغی توازن آپ نہیں، کا جب سے آپ کے عربی کا بھائی وہ جو ہوتا ہے نا جن جاگ گیا ہے، تب سے میرے کو ایسے بات کرنا پڑ رہا ہے. دماغی توازن شاید آپ مشن میں اپنے کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. دیکھیے عبد المنان صاحب، میرا مشن ایک ہی ہے کہ تمام بریلوی دیوبندی ایک ہو جائیں، کتاب و سنت پہ آ جائیں، اور اس کے لیے میں کوشش کرتا ہوں. ہم بول رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے، کوئی انسان دوسرے کو کافی بنانا چاہے گا تو اس میں تو سخت محنت کی یہ مشن سمجھ لو شیطان کا اپنے مشن اتنی جلدی میں ایسا نہیں کہ کامیاب ہو جائے. عبد المنان صاحب دیکھیے، یہاں پہ کوئی ہار جیت کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مطلب بڑے بول سے بچائے. کچھ نہیں دیا ابو بھائی. آپ بول لیجیے پہلے. ہمیں کہنا یہ تھا کہ اپنے علماء اہل حدیث یہ کیا نام کہتے ہیں تقریروں میں، اور اہل حدیث حضرات بولتے ہیں کہ بھی سعودی میں ہماری حکومت ہے، سعودی میں اہل حدیث ہے. تو ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہے کہ جب سعودی عرب میں جب اہل حدیث کی حکومت ہے، وہاں پہ جب کیا نام ہے غیر مقلد یعنی کسی امام وغیرہ کی تقلید نہیں کرتے، اور اہل حدیث کی نزدیک تراویح 8 رکعت ہے، تو رمضان میں وہاں 20 رکعت کیوں پڑی جاتی ہے مسجد نبوی؟ اور دوسرا سوال جی ہمارا بس یہی سوال ہے کہ وہاں پہ اپنے جو غیر مقلد جو اہل حدیث جو احکام کی پیروی کرتے ہیں، ان احکام سے ہٹ کر سعودی عرب میں یہاں پہ اس کے بجائے 20 رکعت اور بہت ساری ایسی چیزیں جن میں علماء احناف کی پیروی کرتے ہیں اس کی، اور اپنے آپ کو غیر مقلد بھی بولتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو یہ بولیے کہ سعودی میں اہل حدیث کی حکومت نہیں ہے، یا تو یہ سب بولیں گے جب آپ ہم کو بولنے دیں گے تبھی تو بولیں گے نا بڑے بھائی، یہ آپ آرام سے بول لیجیے. ہاں، سعودی میں کہ علماء جو کام کرتے ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں، وہ بالکل کیا نام ہے صحیح نہیں ہے، یا تو دونوں میں سے کوئی بات آپ بولتے نہیں ہیں، صحیح بھی آپ کا، ضد بھی آپ کا، پٹ بھی آپ کا. ٹھیک ہے، اور بولیے بھائی. بس اسی کا جواب چاہیے ہمیں. بس تو ٹھیک ہے بھائی، جیسے میں نے اطمینان سے بنا کیل کال کیے آپ کا سوال میں نے سنا اور سمجھنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے. دیکھیے آپ بھلے اس کو مطلب بھائی الزامی طور پہ لگا رہے ہیں، لیکن میں نے اس کو نارمل ایک دم لیا کہ ہاں بھائی اپنے بھائی کا کنفیوژن ہے. لیکن ابو بھائی آپ کو جواب میں ایک بہت ہی نہایت اطمینان اور سنجیدگی سے ساتھ سنوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سے جو میں نے سوال کیا اس سے ہٹ کر آپ کو جواب نہیں دینا ہے، ورنہ تو پھر آپ ہٹ کر دوسری طرف لائن سے آپ بات کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ جیسے آپ کے وہ ہے اس سے زیادہ ڈبل میں ہوں. تو جو سوال آپ کو کیا بالکل وہی جواب دینا، دوسرے لائن میں آپ کو نہیں آنا ہے. میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں میں ان کا ہی جواب دوں گا، نہ اس سے ایک کم نہ ایک زیادہ. کھاتے ہیں لیکن کسی بھی لائن سے آپ ہٹ جاتے ہیں. قسم تو بہت پہلے بھی آڈیو الحمدللہ آپ کے پاس بھی ٹیپ ہو رہی ہے، ہمارے پاس بھی ٹیپ ہو رہی ہے. اگر میں قسم توڑتا ہوں واٹس پہ جا رہا ہے، آپ کو تو معلوم ہوگا، سب اپنے ویڈیو چینل ہمارا یوٹیوب پہ سب اپنے بند کیا جا رہا ہے، تو ہم تو کوئی چھپا کے رکھتے ہی نہیں سارے عوام کے ساتھ. جی ماشاء اللہ اچھی بات ہے، ہم بھی نہیں چھپاتے ہیں، ہم بھی الحمدللہ ڈال دیتے ہیں. اور مانیے اگر ہم چھپا بھی لیتے ہیں تو آپ کے پاس تو آواز ٹیپ ہو رہی ہے نا، آپ ڈال دیجیے گا. تو بھائی میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں میں صرف اتنا جواب دوں گا، نہ اس سے ایک کم نہ ایک زیادہ. ٹھیک، یہ میرا وعدہ ہے. بہت کم ایک ہی سوال کیا ہم نے، بہت سارے سوال نہیں کیا، بس وہی. نہیں آپ نے جو بولا میں سب کا جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، جتنی دیر آپ نے سوال کیا میں اتنا ہی ٹائم لوں گا جواب لینے میں، مجھے کوئی 1 گھنٹہ نہیں چاہیے. ٹھیک، بس بیچ میں آپ نہ بولیے گا، اصول کی پابندی کیجیے گا. آپ نے کہا کہ اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ سعودی میں ہماری حکومت ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں بھائی وہ ان کی عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے، سعودی عرب میں جو سعودی کے جو میرے بھائی جو بادشاہ ہیں ان کی حکومت ہے، انڈین جو بھائی ہیں اہل حدیث ان کی حکومت نہیں ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے. ابھی جواب ان کو اچھا لگے نہ لگے اس سے ہماری دقت نہیں ہے. دوسری چیز آپ نے کہا کہ بھائی وہ لوگ ہیں بھائی
मतलब सऊदी में जो हैं वो लोग हैं भाई, वो गैर मुकल्लिद हैं, जो किसी की भाई तकलीद नहीं करते। तो गैर मुकल्लिद तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह भी थे, क्योंकि भाई वो भी कोई की तकलीद नहीं करते थे। अब आते हैं तीसरे सवाल पे कि मक्का मदीना में होती हैं भाई, वहाँ पे होती है 20 रकात तरावी, ठीक। तो वहाँ पे भाई 20 रकात तरावी जब भी आप देखेंगे, इंटरनेट पे देख लीजिए, या मतलब भाई वो लाइव जब आता है आप तब की उठा के देख लीजिए, 10-10 रकातें पढ़ाते हैं 2 इमाम, और उसके बाद रात को फिर से तहज्जुद की भाई अजान होती है, और फिर से रात को नमाज होती है 8 रकात। और वहाँ पे जो 20 रकात तरावी होती है वो अलग अलग होती है भाई, वो 10-10 रकात। उसके बाद इमाम साहब अपनी 1-1 रकात पढ़ लेते हैं वित्र, तो दोनों की हो जाती है भाई 11-11 रकात, जो सुन्नत से साबित है। अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला, ये बताइए, नहीं पहले मेरा जवाब तो कंप्लीट हो जाए। जवाब सब हो गया भाई, नहीं ऐसे कैसे हो गया भाई, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने पहले अल्लाह की कसम खा ली थी कि जितना आपने पूछा है मैं उतना ही जवाब दूंगा, तो जो आपने पूछा है मेरा जवाब पहले हो जाए भाई। ठीक। अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी रात की नमाज रमजान हो या गैर रमजान हो 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो सऊदी अरब में 10-10 रकात की 2 जमातें होती हैं, वो 20 रकात एक साथ नहीं होती। और अगर खाली जो हमारे हनफी भाई हैं इंडियन, वो अगर खाली 20 रकात तरावी देख रहे हैं तो उनको देखना चाहिए कि वहाँ पे भाई सीने पे हाथ भी बांधते हैं, नमाज में रफादैन भी करते हैं, आमीन भी जोर से बोलते हैं, इमाम के पीछे सूरह फातिहा भी भाई पढ़ते हैं, और इमाम के पीछे इज्तिमाई में दुआ नहीं करते हैं। तो अगर लेना है तो सब कुछ लीजिए ना हरम का कानून, कि हरम में खाली 20 रकात दिखता है। अब आप आगे बोलिए। हम ये नहीं कह रहे, हाँ आपको भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हरम की हमको पैरवी करनी है, हम उनकी बात ले रहे हैं, हमने ये नहीं कहा। और आपने ये जो कहा है, आपने जो तावील की 10-10 रकात, तो इसका मतलब आपका ये है कि इज्तिमाई तौर पे 20 रकात यानी वो नहीं पढ़ते हैं, है ना? नहीं, हम अपने टर्न में बोलेंगे, आपका टाइम स्टार्ट है, आप बोलिए। अगर आपका कहने का ऐसा मतलब है तो आपके व्हाट्सएप पे अभी फौरन मैं वीडियो अपलोड करके वहाँ के मस्जिद नबवी की मैं तरावी भेजता हूँ, और वो भेजता हूँ। आप ये बताइए, आप लोग बिल्कुल क्या उसी तर्ज पे तरावी एकदम लगातार 20 रकात पढ़ते हैं? आप लोग 8 रकात पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं? तो पहले ये आपको ये हुक्म लगाना है कि मस्जिद नबवी में जो इमाम तरावी पढ़ाते हैं वो गलत है। अगर गलत नहीं, अगर सही कहते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल अलग तर्ज से हो रही है, और आप 8 रकात पढ़ रहे हैं, वहाँ पे 20 रकात इज्तिमाई तौर पे पढ़ रहे हैं। और आपने कहा ना 10-10 अरे तो मेरा भाई कोई आदमी एक ही वक्त में बिल्कुल एक ही यकसार 20 रकात थोड़ी ना पढ़ता है मेरे भाई, 2-2 का करके तो पढ़ता है ना। 20 रकात तो कोई भी नहीं पढ़ना, अहले हदीस पढ़ते हैं ना, सुन्नी पढ़ते हैं ना, देवबंदी पढ़ते हैं ना, बरेलवी पढ़ते हैं, या मस्जिद नबवी से कहीं भी सब लोग 2 ही करके पढ़ते हैं 20 तक। तो इसी तरह जिस तरह अपने सुन्नी बरेलवी तरावी पढ़ते हैं 2-2 करके 20 रकात तक, बिल्कुल उसी तरतीब से मस्जिद नबवी में तरावी होती है। हाँ बताइए, क्या ऐसा नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो मैं वीडियो आपके पास भेजता हूँ। ठीक है, हम भी वीडियो आपको भेज देंगे, ठीक है। उसमें आप देख लीजिएगा कि भाई मतलब वो जैसे 10 रकात होती है, इमाम साहब वहाँ के भाई चेंज हो जाते हैं, दूसरे इमाम आते हैं, वो उससे आगे होते हैं मेरे भाई, हमारे अल्लाह के बंदे। देखिए, आपके सवाल में हमने बिल्कुल नहीं टोका, उसूल के पाबंद बनने अगर मुसलमान है तो मुसलमान उसूल का पाबंद होता है ना। तो मैं उसूल का पाबंद हूँ, आप इमाम की तो ऐसे कैसे पाबंद है कि मैं आपकी सारी बातें सुनूं और जैसे मैं एक लाइन बोलूँ आप फौरन उस पर टोक दें? मेरा जवाब तो सुन लीजिए पहले। जवाब नहीं दे रहे आप मेरी बात का सही जवाब। मैंने भी जवाब देना स्टार्ट ही नहीं किया ना, मैंने तो एक लाइन बोली और आपने टोक दिया। ऐसे कैसे फैसला होगा? ये बोला कि वहाँ पे इमाम बदल जाए, तो आप ये बताइए इमाम बदलने जब आप पूरी बात आप सुनेंगे तब चलिए ठीक है, उसके बाद ही तो मसला आपकी समझ में आएगा। हाँ, अभी मेरी एक बात सुन लीजिए। जो 10 रकात पढ़ते हैं, ठीक है, वो 2 जमातें होती हैं। जैसे जो मेरे भाई ऐसा टाइम होता है रमजान का कि हरम में अल्हम्दुलिल्लाह 25 लाख 30 लाख लोग आते हैं, तो वहाँ पे भाई जो होती है जमातें होती हैं 2, क्योंकि सारे लोग मान लो कहीं बिजी हो, कोई नहा रहा हो, कोई खाना खा रहा हो, ठीक है, कोई का मसला पड़ गया हो, तो वहाँ पे 2 जमातें होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई अगर हम कहीं गए अपना नमाज पढ़ने भाई वो जुमे की, और वहाँ पे भाई मस्जिद में आते हैं 100 लोग, लेकिन उस दिन मतलब वहाँ पे कम से कम भाई आ गए अपने भाई वो 200 लोग आ गए, तो वहाँ पे जुम्मे की नमाज की 2 जमातें बनाई जाएंगी। तो उसको ये नहीं कहेंगे कि जुम्मे की 4 रकात
उन्होंने पढ़ ली, नहीं, वहाँ 2 जमातें हुई। क्यों? क्योंकि भाई जो पब्लिक थी ज्यादा थी, तो भाई एक साथ तो भाई पढ़ नहीं पा रहे थे, तो एक बार भाई एक ने अपना पढ़ा दी और उसके बाद भाई एक ने अपना पढ़ा दी, तो वहाँ पे जुमे की 2-2 करके अलग अलग बन गई जमातें। तो उसको 4 रकात इकट्ठा हम नहीं कहेंगे। उसी तरीके से हरम में भी है। बहुत अच्छी आपने बात कही। इस पर आप ये बताइए कि आपने कहा कि 2 जमात होती 10-10 रकात की, तो यहाँ पे पहली बात तो आपको इल्जामी जवाब ये कि 10-10 रकात आपने अपने जुबान से कहा कि 10-10 रकात होती है, और आप दावा करते हैं 8 रकात का, तो यहाँ पे दो तो एक्स्ट्रा फिर भी हो रही है। और दूसरा जवाब सुनिए, मान लिया कि वहाँ पे 2 जमात होती 10-10 रकात की, तो जो इमाम साहब 10 रकात तरावी पढ़ते हैं, तो क्या वो इमाम साहब 10 रकात तरावी पढ़ाने के बाद अपने घर चले जाते हैं या वहीं पे खड़े रहते हैं? हालांकि ऐसा नहीं है, वीडियो पूरी लाइव चलती। इस बात को कोई दुनिया का आदमी इंसान झुठला नहीं सकता है कि इमाम 10 रकात पढ़ के घर चले जाते, खड़े होके 10 रकात। दूसरी अगरचे जमात होती, लेकिन वो भी दूसरी 10 रकात पढ़ते, तो पहली 10 और दूसरी 10, इमाम की तो 20 हो गई ना, और पब्लिक भी बदलती नहीं है। जैसा आपने जुमा की नमाज में कहा कि जुमा की नमाज में भीड़ भाड़ होती है, एक जमात होगी, दूसरे लोग आते हैं, फिर दूसरी जमात होती है, तो क्या पहले जो लोग मौजूद होते जुमा में वो तो नहीं होते, वो तो अपने पढ़ के चले जाते हैं, फिर दूसरे लोग आते हैं। लेकिन तरावी में तो सिस्टम नहीं है, जो लोग मौजूद रहते हैं दूसरे लोग फिर उनकी जगह आते हैं, वही लोग खड़े होकर पढ़ते हैं। तो तमाम लोगों की, इमामों की तो 20 रकात हुई या नहीं हुई, ये बताइए। जमात का छोटी, चलिए 2 जमात होती है, 3 जमात होती है, 50 जमातें होती है। आप रकात की बात करिए कि एक शख्स वहाँ पे खड़ा होकर मुक्तदी कितनी रकात पढ़ता है, बस। अब बोले भाई? हाँ बस बोलिए। जी, आपने जो कहा कि भाई जो भी है, आप कह रहे हैं अप्पू भाई कि जो सऊदी अरब में इमाम पढ़ाते हैं 10-10 रकात, लेकिन आप लोग तो 8 रकात पढ़ाते हैं। तो यही तो मैंने बताया कि अल्लाह के नबी के ताल्लुक से आता है। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी चाहे रमजान हो चाहे कोई और महीना, रात की नमाज 11 रकातों से ज्यादा भाई वो नहीं पढ़ते थे। तो सवाल आ रहा है, जो रकातों की तादाद है सुन्नत से साबित, वो है भाई कितनी? रात की नमाज 11 रकातों से ज्यादा वो नहीं पढ़ते। तो हमारे वहाँ क्या है, हम 8 रकात पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं 3 रकात वित्र, तो भी भाई टोटल हो जाती है 11। और हरम में क्या है भाई, एक इमाम ने पढ़ाई अपनी 10, फिर 1 रकात अपनी पढ़ ली, उनकी हो गई 11। तो तादाद तो मेरे भाई सेम ही आ रही है। अब दूसरी चीज ये कि अगर कोई इमाम है भाई, वो चेंज होने के बाद वापस पीछे भाई वो शामिल हो जाए, तो वो जो नमाज है भाई उनकी उसमें आ जाएंगी नफिल में। क्योंकि मेरे भाई रात का वो हम आपको बता रहे हैं, जैसे मेरे भाई जुमे की जो अभी आपको एग्जांपल हमने दिया कि हाँ भाई वहाँ पे इकट्ठा पब्लिक आ गई, 200 पब्लिक आ गई, लेकिन जगह खाली 100 की थी। तो मैंने पहले भाई, अब हम गए, पहले हमने 100 लोग के साथ पढ़ ली अपनी जुमे की नमाज, ठीक। उसके बाद देखा कि नहीं, हमारे भाई बाद में आए, कहने यार मेरी तो छूट गई, अच्छा ये हम भी आपके साथ पढ़ लें, लेकिन वो हमारी उसमें आ जाएगी, फर्ज में भाई नहीं आएगी, नफिल में आ जाएगी। क्योंकि भाई हम नफिल नमाज भी जमात के साथ पढ़ सकते हैं, ये अल्लाह के नबी से साबित है। अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम को जमात के साथ पढ़ाया, और इमाम के पीछे भी नफिल भाई हम पढ़ सकते हैं, भले इमाम अपनी कोई और पढ़ा रहा हो, हम उनके पीछे शामिल हो सकते हैं अपने भाई उससे नियत से, ठीक। इस चीज को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा आपने ये बात जो कही कि नफल है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब दूसरा जवाब सुनिए, आपने कहा कि नफल के तौर पे पढ़ते हैं, तो पहली जो तरावी पढ़ी वो किस तौर पे पढ़ी थी, ये जवाब दीजिए थोड़ा। रात की जो नमाज होती है उसकी जो रकातों की तादाद है वो जो सुन्नत से साबित है वो है 11 रकात। लेकिन अब अगर कोई चाहे तो 12 भी पढ़ सकता है, 20 भी पढ़ सकता है, 200 भी पढ़ सकता है, इमाम वापस चले भी जाए वो रात भर पढ़ सकता है, ये क़यामुल लैल है। मेरे सवाल का जवाब समझे नहीं आपको मेरे सवाल को? मेरा वो कौन सी नियत से पढ़ लेते पहले ना? हाँ, वो सुन्नत थी, वो जरूरी थी या जरूरी नहीं थी, ये बताइए। ठीक है, अब आपको बता रहे हैं, जो रात की नमाज होती है उसको कोई भी पढ़ता है तो ये सोच के पढ़ता है कि ये है भाई क़यामुल लैल, यानी कि रात की नमाजों का कयाम। उसमें कोई फर्ज, सुन्नत, नफिल, वाजिबात, इसकी कोई नियत की कोई भाई अल्फाज अदा नहीं करता है, ठीक है। तरावी जो है जरूरी नहीं हो। देखिए, इस्लाम में जो बेसिक चीजें होती हैं, एक होता है फर्ज, और फर्ज से जो भी हटके होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नफाफिल, नफिल बोलते हैं, नवाफिल, ठीक। फर्ज को जो भी छोड़ के कोई भी काम करेंगे भाई वो उसमें आ जाता है
अपना एक्स्ट्रा में, नवाफिल में, यानी कि जो फर्ज होती है मेरे भाई उसको बोलते हैं भाई आमतौर की नमाज। उसके बाद जितनी भाई वो नमाजें हैं उनको अगर अल्लाह के नबी ने पढ़ा तो उसको बोल देते हैं सुन्नत, अल्लाह के नबी ने हमेशा पढ़ा तो उसको बोल देते हैं भाई वो सुन्नत मौक़दा, अल्लाह के नबी कभी पढ़ते थे कभी छोड़ते थे तो उसको बोल देते हैं सुन्नत मतलब भाई वो गैर मौक़दा। तो ये टर्म है, इस्तिलाह है, इसमें नियत की कोई कैद नहीं है कि हमने पहले कौन सी नियत से पढ़ी बाद में कौन सी नियत से पढ़ी। रात का कयाम है ये आप रात भर पढ़ते रहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही अल बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2009, जिसने ईमान के साथ अगर रातों का कयाम किया तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ठीक है, आप सुनिए, आप मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे ये बताइए। तो अल्लाह के बंदे आप जो पूछ रहे हैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैंने पहले कसम खा ली थी कि आप जितना पूछेंगे उतना जवाब दूंगा। आपने कहा कि हमारे इस्लाम में अपने फर्ज है, फर्ज के बाद जो चीजें आती है वो सब नफल और नवाफिल के दर्जे में आती है। ये आपने अभी सिर्फ कहा, ये हकीकत है। बात तो सुनिए आप, मैं कुछ नहीं कहूँ, मैंने कहा इनकार किया। तो इसका मतलब ये है कि तरावी की नमाज जो पढ़ी जाती है वो नफल के तौर पे पढ़ी जाती है। नफिल है। हाँ ठीक है, बस ये बात आपके एतराफ करते हैं कि तरावी की नमाज नफल है। ये हर आदमी एतराफ करता है, कोई नहीं कहता कि मतलब जो ये तरावी की नमाज है वो फर्ज है। ठीक है, अभी ठीक है, मैं ये फर्ज नहीं बोला, मैंने फर्ज भी नहीं बोला, नस्ल भी नहीं बोला। मैं अच्छा, आप क्या समझाना चाह रहे हैं पहले आप बोल लीजिए फिर हम बोलेंगे अपने टर्म में। तो सुन लीजिए, आपने खुद अपनी जुबान से इकरार अभी किया कि तरावी की नमाज ये नस्ल है, और इससे पहले दफा आपने ये कहा कि जब मस्जिद नबवी में 10 रकात नमाज पढ़ाते हैं फिर उसके बाद दूसरी 10 रकात पढ़ाती हो तो वो नफल के तौर पे पढ़ते हैं। जो पहली 10 आपने जैसा कि क्या तरावी नफल, वो भी नफल की नियत से, और दूसरी तरावी आपने क्या उसका भी आपने इकरार किया, वो भी नफल। हाँ, वो आप समझ नहीं पाए, अभी मैं आपको समझाता हूँ अपने टर्म में। चलिए मेरी बात सुन लीजिए पहले। हाँ, पहले हम आपकी बात सुन लेंगे। हाँ, आपने खुद अपनी जुबान से इकरार किया, जैसा कि रिकॉर्डिंग है पीछे की मेरे मोबाइल में सब क्या नाम है, अरे हाँ रिकॉर्डिंग हो गई, चलिए मान लिया। फिर बोले आगे बोलिए। आपने खुद इकरार किया कि मस्जिद नबवी में दूसरी 10 रकात जो मुक्तदी और इमाम जो पढ़ते वो नफल के तौर पे पढ़ते, और आपने अभी ये भी इकरार किया कि तरावी नफल है, तो गोया 10 रकात पहले पढ़ेगी वो भी नफल, दूसरी दफा पढ़ी वो भी नफल, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? गोया के बताओ, मैं एक ही नफली के तौर पे पढ़ी। ठीक है, बताइए। अब मैं बताऊँ, देखिए रात की जो नमाज है क़यामुल लैल, ठीक, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाली अल्लाह के नबी के ऊपर भाई इसको मतलब भाई उसको कर दिया था फर्ज। ठीक, अल्लाह के नबी रात की नमाज भाई वो मतलब हमेशा पढ़ते थे, लेकिन उम्मत के ऊपर ये क्या है, नफिल है। ठीक, और ये खाली रमजान में नहीं है, ये पूरे साल है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मैं हर रात के तीसरे पहर में आसमानी दुनिया पे आता हूँ और एक आवाज भाई वो लगाई जाती है कि कोई है मुझसे मांगने वाला, आया हूँ मैं देने। ठीक, तो ये हर रात का मामला है, और रात को जो मतलब ऐसे नॉर्मल पढ़ते हैं उसको उर्फ़े आम में बोलते हैं भाई तहज्जुद, और इसको खास तौर से रमजान में जब पढ़ते हैं और ईशा के फौरन बाद पढ़ते हैं और 4 रकात के बाद इतना आराम करते हैं कि रीढ़ की हड्डी को सुकून पहुंच जाए, उसको शॉर्ट फॉर्म में उर्फ़े आम में कहते हैं तरावी। ये नमाज एक ही है। अब हाँ वो जमा है तरबिया की, ठीक है, चलो खैर वो अपना अलग बात है। तो नमाज इमाम साहब ने जो पहले पढ़ाई वो जो रकातों की तादाद थी सुन्नत, उसको कंप्लीट कर दिया जमात के साथ। ठीक, अब वो अपने देखिए पूरी रात की तो जितनी नमाजें आप पढ़ेंगे वो नफली है ना, पहले भी उन्होंने पढ़ी वो नफली पढ़ी, लेकिन जो तादाद रकातों की थी वो सुन्नत थी। आप दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं। रात की नमाज किया कि के बाद दर्जा सब अल्लाह के बंदे, जब आप बोलते हो तो मैं सुनता हूँ ना, मेरा जवाब तो समझने की कोशिश करो। आप जवाब उल्टा सीधा दे रहे हैं, इसलिए तो आदमी कैसे सुने? तो आप अपनी अकल से फैसला कर लेंगे हमारा जवाब उल्टा सीधा है। नहीं है अभी मेरे नहीं, आधे जवाब में आप फैसला कर लेते हैं। मैं क्या पूरी पब्लिक फैसला कर लेगी कि आप उल्टा जवाब दे रहा है? पब्लिक फिर वही चीज अभी आपके बात समझ में एक्चुअल बात ये है, आपको ऑडियो मतलब डालने की बहुत स्पीड में आपको रहते हैं, आप सोचते हैं किसी तरह बात को तोड़ मरोड़ लें और उसको पटाख से फैला दें, मसला समझना नहीं चाहते आप। इस बात का इकरार आपने भी किया कि पहली 10 रकात नफल थी वो तरावी, और दूसरी रकात वो भी नफल के नियत से। आप बात को तो दोनों, अरे रात की तो सारी फिर वही चीज, रात की तो जितनी नमाजें आप पढ़ेंगे ना वो भाई वो नफली है, लेकिन जो रकातों की तादाद है वो सुन्नत से जो साबित है वो है 11 रकात।
तो यही तो समझा रहा हूँ मैं आपको इतनी देर से। नफिल नहीं है वो। नफिल कैसे? अरे मेरे अभी मैंने कहा ना, एक लाइन आप सुनिए फिर से, ठीक है? देखिए, हंसने से कुछ नहीं साबित होगा अगर आप भाई वो दीन की बात कर रहे हैं। अभी नफल भी है, दीन इस्लाम में कोई भी चीज होती है, एक होती है फराइज, और जो फराइज से मेरे भाई हट की जो भी इबादत होती है उसको बोलते हैं नवाफिल। जैसे मेरे भाई अगर हम किसी को पैसा देते हैं रमजान के, भाई मतलब आजकल भाई हम लोग देते हैं ना भाई, वो रमजान में आखिरी अशरे में ज़कात देते हैं, तो वो तो मेरे भाई फर्ज है। लेकिन ज़कात के अलावा जो भी सदका हम देंगे वो सब मेरे भाई कायम आएगा, वो उसमें आ जाएगा नवाफिल में। तो फर्ज से हट के जो भी इबादत है उसको बोलते हैं नफिल, नवाफिल। तो रात की नमाज जो है वो मेरे भाई उम्मत के ऊपर तो है नहीं फर्ज, तो वो भी नवाफिल है। लेकिन इसमें जो सुन्नत की रकात की तादाद है वो 11 रकात है। अब बात समझ में आई? आपको भाई एक बात का फिर जवाब दे दीजिए, तरावी की जो नमाज जो आप लोग जितनी भी रकातें पढ़ते हैं वो नफल समझ कर पढ़ते हैं या गैर नफल समझ के पढ़ते हैं, इस बात का जवाब दे दीजिए। हम तरावी, तहज्जुद, वित्र, रात की नमाज जो भी हम पढ़ते हैं वो फर्ज से हटके है, यानी कि वो ऑटोमेटिक हो गई नवाफिल। अब जो इसमें रकातों की तादाद सुन्नत से साबित है, यानी कि जो अल्लाह के नबी खास तौर से भाई वो रकात पढ़ते थे वो है 11 रकात। तो हम ये कहते हैं कि रात की नमाज तरावी की जो रकात जो सुन्नत से साबित है वो है मेरे भाई 8 + 3 11 रकात। तो 11 रकात हमारे नजदीक सुन्नत है। नमाज जो ये है ये इस पे तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है, सभी मानते हैं फर्ज नहीं है और जो फर्ज नहीं है भाई वो ऑटोमेटिक भाई वो हो जाता है नवाफिल। ये तो उसूल है ना, बुनियादी उसूल है। आप जो 11 रकात पढ़ते वो क्या है? आप जो 11 रकात हम रात को पढ़ते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क़यामुल लैल। ठीक, वो मेरे भाई जो नमाज है वो है भाई उम्मत के लिए क्या है? नवाफिल। और इसकी जो तादाद है रकातों की वो सुन्नत से साबित है 11 रकात। आपको भाई ये फिकी इस्तिलाह में कहते हैं कि ये नमाज सुन्नत है या सुन्नत मौकदा है या वाजिब है। ये फिकी इस्तिलाह में आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं इस्लाम का बेसिक रूल बता रहा हूँ। फर्ज से हटके जो भी इबादत हैं उनको सबको बोलते हैं भाई नफिल। आपको भाई जी बताइए। आप 2 मिनट थोड़ा आप कंफ्यूजिंग वाली बात कर, 2 मिनट पहले गौर और फिर करें। पहले तो आप ये सोच लीजिए कि तो आप कीजिए, एक काम कीजिए, 1 to 1 क्वेश्चन आंसर हो जाता है। क्या आपके समझ में नहीं आया बताइए एक लाइन में जल्दी से। मैं आपको 2 मिनट सोचने का मौका दूंगा, आप 2 मिनट पहले सोच लीजिए पूरा फुल एकदम। पहले आपने बोला नफ्ल भी है, दूसरी मतलब बोला सुन्नत है, तीसरी मतलब बोला वो है, ये है वो, तो आपको खुद ही कंफ्यूजिंग हो रही है। तो आप 2 मिनट सोच लीजिए, मैं इससे में दूसरी। हाँ देखिए, अब एक बार फिर से आप सुन लीजिए, ठीक है? 2 मिनट आप ये फर्ज और सुन्नत और नफिल और वाजिबात इनमें आप उलझ गए, फंस गए हैं, इसलिए आपके पास समझ में नहीं आ रही है। सीधा उसूल याद रखिए कि फर्ज को छोड़ के जितनी भी मेरे भाई इबादत हैं वो होती है नवाफिल। तो ये बेसिक उसूल है, ये नहीं समझ में। हम आपको दीन सिखा रहे हैं ना अब्दुल मन्नान भाई, हम आपको दीन सिखा रहे हैं। जो आपके आलिमों ने आज तक आपको नहीं बताया है वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। सही तौर से आप सीख नहीं, तो आप हमको सिखा दीजिए ना, आप हमको बता दीजिए। चलिए भाई, या तो आप हमसे सीख लीजिए या तो हमको सिखा दीजिए। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए सिखाइए। एक दफा नहीं बल्कि इस रिकॉर्डिंग में मौजूद है कितनी दफा आपने ये कहा है और अभी भी फौरन कहा है कि इस फराइज के अलावा जितनी भी चीजें सब नवाफिल है, तो सब नवाफिल है। तो मेरा यही सवाल है कि 10 रकात आपने कहा वो तरावी वो भी नफल है, दूसरी 10 रकात पढ़ी वो भी दूसरे उसी इमाम ने और या उसी मुक्तदी ने पढ़ी वो नफल है, तो दोनों नियतों में फर्क क्या हुआ? आपसे यही 1 घंटे से मैं सवाल कर रहा हूं। अब इसका जवाब एकदम आसानी से सुन लीजिए। पहले इमाम साहब ने जो रात की नमाज पढ़ाई क़यामुल लैल जमात के साथ, वो भी भाई वो क्या है? नवाफिल है। लेकिन वो सुन्नत की रकातों से जो भाई वो साबित थी रकात, उसके हिसाब से पढ़ाया। फिर इमाम साहब उसी पीछे शामिल हो गए, वो भी जो पढ़ी वो भी नवाफिल है। रात की तो सारी नमाजी मेरे भाई है ना, आप चाहे 5 रकात पढ़ो, 10 पढ़ो, 25 पढ़ो, 100 पढ़ो, 200 पढ़ो, सारी नमाज मेरे भाई नफिल है। नफल की नियत तो हो गई ये तो रकात में। अरे नियत तो ये सब तो हनफियों के चोचले है ना। हमारे वहाँ तो जो नियत होती है उसको बोलते हैं दिल का इरादा। फीका की मेरे भाई इस्तिलाह उठा लीजिए कि जो नियत होता है वो दिल का इरादा होता है। ये आपको पता है कि नहीं? वो जबान से कॉल करने को नहीं कहते कि मैं नियत करता हूँ 20 रकात तरावी सुन्नत मौकदा की, ऐसी कोई नियत के अल्फाज नहीं साबित है।
मेरे अप्पू भाई, हम जुबान की तो बात ही नहीं निकाली हमने, नियत। तो आप कौन सी नियत की आप बात कर रहे हैं? जो इमाम साहब ने जमात के साथ पढ़ाई वो भी नफिल थी, जो मेरे भाई पीछे आके पढ़ी वो भी नफिल थी। पहले जो पढ़ाई उसकी जो रकातों की तादाद थी वो सुन्नत से साबित थी। अब बात समझ में आ गई? बात सुनिए, मैं खुद बोल रहा हूँ, अन्नियत हियल इरादतुल क़ल्ब, वो दिल के इरादे का नाम है। तो जरा यही तो पूछ रहा हूँ, दिल में जो इरादा किया 10 में भी 10 रकात वो भी नफल, दूसरी तरफ वो भी नफल, तो 20 रकात पूरी तरह भी नफल हो गई ना पूरी तरह भी, और आप उसको अलग अलग छांटता है, ऐसा कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ आप 20 रकात तरावी अगर आप इकट्ठा पढ़ेंगे वो भी नफिल है, और 11 रकात तरावी पढ़ेंगे वो भी नफिल है। बस फर्क इतना है, जो रकातों की तादाद है वो सुन्नत से जो साबित होगी। देखिए हम भाई, हमारा दावा क्या है? हमारा दावा ये है कि अब्दुल मन्नान भाई, अब आप फिर अल्लाह की मेरे भाई कसम हमने खाई थी, इसीलिए जितना आप पूछ रहे हैं उतना ही जवाब दे रहे हैं। नहीं, आप जिस तरीके से टॉपिक छोड़ के भाग रहे हैं ना, अब तक आपकी हर सवाल का हम जवाब देते। नहीं, आप इतना सवाल का, अब आपको भाई आप तो यही तो मैं बता रहा हूँ ना, आप बोलते, देखिए आपकी बात मैं सुनता हूँ इत्मीनान से, खामोशी से। जैसे मैं बोलने लगता हूँ आप अप्पू भाई, मतलब ये कौन सा मेरे पे कमीनापन है? ये तो दोगलापन हो गया ना आपका। मतलब मैं आपकी बात सुनूं आराम से, मैं बिल्कुल चूचा भी ना करूं आपकी बात में, और मैं एक लाइन बोलना स्टार्ट कर दूं, नहीं ये ऐसा क्यों? नहीं, पहले क्या था, बाद में क्या था? अरे बोलने तो दो सामने वाले को मेरे भाई, बात करने के आदाब पहले सीख लीजिए अल्लाह के बंदे। अप्पू भाई, अगर इस बार अभी क्या नाम आखिरी मौका है, इसलिए कि मैं ज्यादा क्या नाम ऐसे टाइम बेकार वगैरह करने वाला आदमी, अगर इस बार आपने मेरे सवाल का पक्का जवाब नहीं दिया तो कॉल मैं खुद काट दूंगा और पब्लिक को सुनाऊंगा कि कौन गलत है कौन सही है, ठीक है? वो तो आपकी नियत हम जानते हैं, आप कॉल इसीलिए करते हैं कि जल्दी से बात हो, फटाक से ऑडियो डालें और अपना नाम निहाद ऊंचा हो जाए। खैर वो ऊंचा आपका होने वाला नहीं है। हमको ये दे, चलो ठीक है, फिर से एक लाइन सुन लीजिए। कौन है गलत कौन है? वो रमजान में जो हम नमाज पढ़ते हैं या गैर रमजान जो भी रात की नमाज हम पढ़ते हैं, वो उम्मत के लिए वो फर्ज भाई नहीं है, इसके ऊपर सबका इत्तेफाक है। वो तमाम नमाजें मेरे भाई जो शामिल होती हैं वो उसमें शामिल होती है नफिल में। हम ये कहते हैं कि 20 रकात को अगर कोई सुन्नत कहता है तो हम उसको टोकते हैं। हम कहते हैं कि मेरे भाई 11 रकात सुन्नत है, 20 रकात सुन्नत भाई वो नहीं है। यहाँ पे जो भाई वो झगड़ा होता है वो 8 का होता है, 20 का होता है, ठीक? ये नहीं होता है कि ये जो तरावी की नमाज है ये फर्ज है या नफिल है, इस पे तो कोई मेरे भाई झगड़ा ही नहीं है, रकातों की तादाद पे झगड़ा होता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि 20 रकात पढ़ना जायज है मेरे भाई। 20 क्यों, आप 200 पढ़ो, रात भर पढ़ो, तमाम नफिल नमाजें आपको जितनी पढ़नी उतनी पढ़ो, इमाम के साथ पढ़ो, फिर आराम से घर पे आके घर पे पढ़ो, फिर जाके इमाम के साथ पढ़ो, फिर आके घर पे पढ़ो, रात भर पढ़ते रहो। इंसान की अपनी मर्जी, जितनी मतलब भाई वो इबादत कर लेगा उतनी उसके लिए अफजल है। लेकिन जो रकातों की तादाद जो सुन्नत से साबित है वो है 8 रकात प्लस 3 रकात, यानी कि 11 रकात। अब मैंने कौन से अपने जवाब में उंगली कर दी ये नहीं समझ में आ रहा है आपके। आप ये बार बार कह रहे हो कि नहीं, इमाम साहब ने जो पहले नमाज पढ़ाई 10 रकात वो कौन सी भाई उससे थी नियत से, और जो बाद में पीछे शामिल होके पढ़ी वो कौन सी भाई उनकी थी नियत। तो दोनों नमाज की एक ही नियत थी ना, दोनों नमाज को कोई मेरे भाई ये कहता ही नहीं फराइज है। पहले जो पढ़ी वो भी मेरे भैया नफिल में है और जो बाद में पढ़ी वो भी नफिल है, लेकिन पहले जो पढ़ी वो जो रकातों की तादाद थी वो सुन्नत से साबित थी, उसको पढ़ लिया। अब आदमी चाहे रात भर पढ़े, इसीलिए भाई जो हरम शरीफ है वहाँ पे रात को तहज्जुद की अजान होती है और फिर से रात को नमाज होती है 8 रकात। तो फिर लेकिन इंडिया में तो ऐसा होता नहीं है, इंडिया में तो खाली 23 रकात अपना पढ़ दी और जाओ अपने अपने घर। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ दीन को समझने की आप कोशिश कीजिए। आपकी अकल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है, और आप कभी भी अफ्फू खान को कभी मेरे भाई अटका ही नहीं सकते, ना मेरे भाई आप फंसा सकते हैं, क्योंकि जो मैंने इल्म हासिल किया है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले सुन्नत से अल्हम्दुलिल्लाह हासिल किया है। किसी हनफी जो जाहिल मुकल्लिद होता है ना उससे हासिल नहीं किया है कि उम्मत को उलझा दे फर्ज और नफिल और सुन्नत और वाजिबात और मुस्तहब, इनमें नहीं हम लोग भाई उलझते हैं। सीधी बात, जो फर्ज है वो फर्ज है, फराइज से हटके तमाम चीजें मेरे भाई वो जो होती है भाई वो होती है नफिल। अब नफिल में जो अल्लाह के नबी करते थे उसको भाई इस्लाम में बोलते हैं सुन्नत, जो अल्लाह के नबी हमेशा अमल करते थे उसको बोलते हैं भाई वो सुन्नत मौकदा, जो कभी अमल करते कभी छोड़ते हैं उसको बोलते हैं सुन्नत गैर मौकदा। तो ये सब इस्तिलाह होती हैं, ये आपको समझाएंगे हम किसी दिन, आपको सिखाएंगे पूरा दिन इंशाअल्लाह, आप परेशान ना होइए। अब आप बोलिए।
سب سے پہلی بات تو ہم نے یہ بولی کہ ہم نے علماء کے اہل سنت سے علم حاصل کیا، یہ سب کیا ہے، یہ بات آپ کی جھوٹ ہے کہ آپ ہی کے علماء اہل حدیث کا کیا نام ہے، میرے پاس ریکارڈ وغیرہ سب موجود ہے، بولے افسوس ہماری جماعت کا سب سے بڑا داغ ہے، ہمارے علماء کو بدنام کر رہا ہے وہ ایک وہ ارے یار پھر بھی چیز تم کسی میرے بھائی نہیں یہ ٹاپک نہیں چل رہا ہے، یہ ٹاپک نہیں چل رہا ہے. میں نے اللہ کی قسم کھائی تھی کہ جو آپ سوال پوچھیں گے اس کا جواب دوں گا. میں نے آپ کو ٹاپک سے بھاگنے کا نہیں کہا تھا. نہیں ندیم الوی کو آپ عالم مانتے ہیں؟ اتنا بتا دیجئے. ندیم الوی کو آپ عالم مانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں تو نہیں جانتے تو اس کے بعد کہے کے لیے پیش کی کہ انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ افو خان سے ہماری جماعت بدنام ہو رہی ہے. بھائی یہ تو اب اس سے ہی آپ کی مکاری ثابت ہو گئی کہ آپ جس انسان کو جانتے نہیں ہیں اس کا فتویٰ آپ نے مان لیا تو کتنے بڑے اندھے مقلد ہوں گے. تو آج سے عبد المنان صاحب ہو گئے ہیں ندیم الوی کے اندھے مقلد.